Hello everyone, a very fresh good morning to all of you. How are you all today? I hope you all are fine and safe, right? So students, today we are going to start the new chapter of EVS, chapter number 9, Animals and their Young Ones. Chapter number 9, Animals and their Young Ones. So first of all students, tell me that what is the meaning of young ones? What is the meaning of young ones? Young ones means small babies. See, animals and their small babies. See students, we live on the earth, right? और अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं. So living things includes what? Humans, animals, birds, fish, right? All these are living things. All these are living things. So living things can produce their own kind of young ones. Living things can reproduce their own kind of young ones. तो जो लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, राइट, ये सारे लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग अपनी जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, राइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. नाउ सम एनिमल्स, some of them they laying the egg or some of them giving the birth to a baby. For example, humans. So humans, they all are the living things, right? Humans all are the living things, yes or no? Yes, humans are living things because we can breathe, we can move, right? We can reproduce. So humans are living things. So how humans reproduce? How they make their young ones? So in humans, woman gives birth to the baby. In humans, women give birth to the babies. तो women जो होती है वो बेबी को बर्थ देती है. बट एनिमल्स जो होते हैं उसमें 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सम ऑफ द एनिमल्स दे लेइंग द एग एंड सम ऑफ देम दे giving the birth to a baby. So in this chapter we will learn how the different animals produce their young ones. Okay, see, introduction. All living organisms produce young ones of their own kind. तो जितने भी living organisms है planet पे, right, on the earth there are so many living organisms. They produce young ones of their own kind. अब इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. मतलब अगर ह्यूमन है, ह्यूमन इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. अगर वो वुमन जो है वो बेबी को बर्थ देती है, तो जो वो बर्थ देगी तो क्या होगा? वो बेबी जो है वो ह्यूमन ही होगा. अगर कोई एनिमल है, राइट, तो एनिमल अगर कोई बेबी को बर्थ देता है, फॉर एग्जाम्पल काव, तो काव जो है अगर वो बेबी को बर्थ देता है तो वो ह्यूमन नहीं होगा. ना ही तो कोई किटन होगी, तो क्या होगा? यस, काऊ का यंग वंस, वो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं. या तो एग रखते हैं तो एग में से निकलते हैं उनके जैसे एनिमल. फॉर एग्जांपल अगर काव है तो वो बर्थ देगी काव बेबी को, राइट. अगर कैट है तो वो बर्थ किसे देगी? किटन को. ओके, सी, ऑल living organisms produce young ones of their own kind. This is called as reproduction. All living organisms produce young ones of their own kind. This is called as reproduction. So ये जो process है जिसमें living organisms अपने जैसे young ones को birth देती है, right? So इस process को हम कहते हैं reproduction. Now there are 2 types of animals. There are 2 types of animals. First one is eggs laying animal. First type of animals are eggs laying animal, and the second type of animals are giving birth to their baby. First one is egg laying animals and second one is giving birth to their baby. See, for example here, lion and lioness, right? So this both can reproduce their own kind of. Now lioness can give the birth to the baby. lioness जो है वो एग नहीं रखती है, राइट. तो वो
क्या करती है, वो बेबी को बर्थ देती है. सो दिस इज हियर यू कैन सी दिस लायन कब. ओके, सो दिस इज हाउ सम एनिमल्स लेइंग एग एंड सम एनिमल्स गिव birth to their babies. Then first type of animals are egg laying animals. So for example, birds reproduce by laying eggs. So how birds reproduce? By laying eggs. Birds जो है वो अपने जैसे young ones को कैसे reproduce करती है? By laying eggs. वो egg रखती है जिसमें से जब वो egg जो है वो hatch होता है तो उसमें से जो बेबी है वो बाहर निकलता है. बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड जो है वो अपना पहले नेस्ट बनाती है. देन ले देयर एग्स, तो उसमें अपना एग जो है उसको ले करती है. देन बर्ड सीट ऑन द लेग्स टू कीप देम वार्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. देन रेज यंग वंस. सो स्टूडेंट्स, कभी भी आपने देखा है कि अगर कोई बर्ड जो है उसे अगर अपनी बेबी को रिप्रोड्यूस करना है, अगर उसको एग्स को ले करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले बर्ड अपना नेस्ट बनाएगी. बिफोर लेइंग द एग. वंस द नेस्ट विल बी मेड, देन दे ले देयर एग्स. एक बार जब वो नेस्ट बन गया तब उसके बाद उसके अंदर वो एग्स जो है उसको ले करती है. देन बर्ड जो है वो एग्स के ऊपर बैठती है. ये सब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, राइट? जैसे कि आप कोई बिल्डिंग में रह रहे हो या आपके घर के आसपास कहीं पे भी आपने नेस्ट देखा हो, तो जो एग होता है उसके ऊपर ही बर्ड बैठी रहती है. वो ऐसा क्यों करती है? टू कीप देम वार्म. वो जो एग है उसको वार्मथ देने के लिए वो हमेशा उसके ऊपर ही बैठी रहती है. तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे बर्ड एग के ऊपर उसको वार्म देने के लिए बैठी रहती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्यूबेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. एंड देन रेज यंग वंस. वंस द एग हैच एंड द बेबी विल कम आउट, राइट? देन द बर्ड रेज देयर यंग वंस. सो दिस इज हाउ birds laying eggs, okay, and they reproduce. Okay, now let's start our chapter number 9, animals and their young ones. Students, take out your textbook and open the page number 95. Okay, so students, in this chapter you will learn about eggs laying animal, then life cycle of eggs laying animals that giving the birth to their young ones, and in last you will learn about the animals look after their young ones. So students, ये जो चैप्टर है एनिमल्स एंड their young ones, so इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? एग लेइंग एनिमल्स. जो एनिमल्स एग ले करते हैं, राइट? जो एग में से जो बेबी का बर्थ होता है वो एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. Then second point is life cycle of egg laying animals. So egg laying animals जो है उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, राइट? कि वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, वो किस तरह से हैच होता है वो एग, और किस तरह से उसकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट ऑल्सो. एंड द थर्ड वन, एनिमल्स दैट गिव द बर्थ टू देयर यंग वंस. और हम उस एनिमल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे जो बेबी को बर्थ देते हैं. एंड एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस. एंड ऑल्सो वी विल लर्न हाउ एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस. सो इन शॉर्ट, in this chapter we will learn about the two types of animals. First one is egg laying animals and second one is animals that give birth to their young ones. Okay, so let's start. Number the stages given below in their correct order to show the life cycle of a hen in order. So here students, they given us some pictures, right? So what we have to do is we have to fill the numbers, right? We have to fill the numbers in the box to their correct order. तो उनकी जो लाइफ साइकिल है हैन की, राइट, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से ख़त्म होती है, तो इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हैन की लाइफ साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी होती है? तो फर्स्ट ईयर यू कैन सी दिस एग, राइट? फर्स्ट हैन लेइंग एग. सो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा?
एग का, तो यहाँ पे आपको नंबर 1 लिखना है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि hen जो है वो एग को ले करती है, राइट। देन सेकंड स्टेज इज एग हैच, तो जैसे ही एग जो है वो हैच होता है, राइट। एंड थर्ड वन, उसमें से बेबी बाहर निकलता है। एंड फोर्थ वन, तो क्या हुआ फोर्थ वन में? देन थर्ड में ये जो बेबी है वो जब एग हैच होता है, तो एग जब टूटता है, हैच मतलब टूटना, जब एग जो है वो टूटता है तो उसमें से बेबी जो है, बेबी बर्ड जो है वो बाहर आता है। द फोर्थ स्टेज इज दिस लेन ग्रोन अप, दिस बर्ड ग्रोन अप एंड देन it will lay eggs, right? So first step is laying egg, second one is hatching the egg, third one is थर्ड वन में क्या होगा स्टेज में कि बेबी जो है वो बाहर आता है, और फोर्थ में हैन जो है वो वापस से एग को ले करती है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन। देन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। The ability to produce more of their own kind is called reproduction. Animals reproduce by two methods. First one, laying eggs and giving birth to their young ones. The ability to produce more of their own kind is called reproduction. तो एक ऐसी एबिलिटी जो अपने जैसे ही, राइट, अपने जैसे ही लिविंग बीइंग को, लिविंग थिंग को रिप्रोड्यूस करती है, तो उसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड्स। एनिमल्स जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय टू मेथड, एंड दे आर फर्स्ट वन लेइंग एग्स एंड सेकेंड वन इज गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। तो एनिमल्स जो है वो टू मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे? फर्स्ट वन इज लेइंग एग्स, सम ऑफ एनिमल्स लेइंग एग्स एंड सम ऑफ एनिमल्स गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स जो है वो एग्स देते हैं, एग्स को ले करते हैं, राइट, जिसमें से बेबी जो है वो बाहर आता है। when the egg hatch, then the baby will come out, and some animals gives birth of their young ones, right? So this is how animals reproduce by this two method, laying eggs and giving birth to their young ones. Okay, so students, first of all your homework is you have to complete this life cycle, right, this exercise in your textbook. And so second one is you have to make a table, right? So first heading is laying eggs, and in the second part heading is giving birth to their young ones. Animals that laying eggs and animals that giving birth to their young ones. So you have to write down the examples. Okay, you have to write down the five examples. Okay, 5 examples of laying eggs animal and 5 examples of giving birth to their young ones animals. ठीक है, जो एनिमल्स जो एग्स देते हैं, राइट, उनके 5 आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, और जो एनिमल्स अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं तो उनके एग्जाम्पल्स 5 एग्जाम्पल्स आपको फेयर नोटबुक पे लिखने हैं, राइट. सो दिस इज योर होमवर्क फॉर अ डे, दैट यू हैव टू राइट डाउन द 5 एग्जाम्पल्स ऑफ लेइंग एग्स ऑफ एनिमल्स एंड गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस एनिमल्स ईच. Understood? Fine. So here students, this is the introduction of this chapter. Okay, and the next topic we will start from the tomorrow, and also read the chapter. Okay, fine everyone, thank you so much. If you have any query, so you can drop a message. Thank you everyone, have a wonderful day. Bye bye.